Good evening, all. I hope I am audible and my screen is also visible. Okay. Anyone confirm Yes, sir. my audio clearly and my screen is also visible? Yes, sir. It's visible. Okay, thank you, Vishnu. So, good evening, all. My name is Fenil Patel and I am working as an senior application engineer at Sopan Infotech. And जो आज का हमारा सेशन है, so which is based on SolidWorks flow simulation. सो आप में से अगर किसी ने लास्ट टाइम का मेरा वेबिनार अटेंड करा होगा तो उसमें हमने स्ट्रक्चर सिमुलेशन देखा था सॉलिड वर्क्स का. आज हम देखेंगे फ्लो सिमुलेशन. तो द टॉपिक says that for real world engineering problems how you can tackle with SolidWorks flow simulation. Okay, so moving over to our agenda. तो एजेंडा में हमारा है फर्स्ट तो है सोपान का ओवरव्यू व्हिच आई कवर वेरी क्विकली. देन नीड ऑफ सीएफडी एनालिसिस, फ्लो सिमुलेशन की जरूरत क्यों है. ओके, सेकेंडली हम वो डिस्कस करेंगे. देन व्हाई सॉलिडवर्क्स फ्लो सिमुलेशन ओनली, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ सॉलिडवर्क्स फ्लो सिमुलेशन, वो हम देखेंगे. और कौन कौन से इंडस्ट्रियल वर्टिकल हम कवर कर सकते हैं. मैं आपको एक बेसिक वर्कफ्लो भी दिखाऊंगा. An example of simulation you can perform in SolidWorks flow simulation. And at the last, the key takeaways from this webinar. So सबसे पहले start करते हैं सोपान का ओवरव्यू. So Sopan is a group of company. So in Sopan group there are three companies. That the first one is Sopan Institute of Engineering and Design. Second one is Sopan Infotech, and third one is Sopan Machinery and Tools. So in 2010, Sopan Group has started with the vision of deliver more than promise. And the हमारी first firm थी that is Sopan Institute of Engineering and Design, वो start करी थी हमारे founder मिस्टर महेश मिस्त्री ने. So यहाँ पे हम basically students को train करते हैं for different engineering softwares like CAD, CAM and CAE. Then in 2012, we have started the Sopan Infotech Group. So in Sopan Infotech, we are dealing with CAD software, CAM software, and CI softwares. So in Sopan Infotech, we are channel partner of Deso system for CAD system, and for CAM, we are the channel partner of Hexagon products. And in 2024, we have introduced our third firm that is Sopan Machinery and Tools, in which we are the channel partner of Sugami Machine and Walter Cutting. So as I say in Sopan Infotech for CAD domain, so we are the channel partner for Dassault system. So in Dassault system we have three major products. The first one is our well-known CAD software that is SolidWorks 3D CAD. Second one is the alternative of AutoCAD, I can say that is DraftSight. And the third one is our cloud-based PDM PLM solution that is 3D Experience Works. Also, we are dealing with the multi-products of SolidWorks 3D CAD. So SolidWorks CAD के बारे में तुम्हें पता है. अदर थिंग जो कवर होती है अदर देन CAD इन SolidWorks, which is SolidWorks Visualize. अगर आपको रेंडरिंग प्रोजेक्ट्स आपको करने हो वो आप कर सकते हो. देन SolidWorks इंस्पेक्शन, जस्ट हमारा वेबिनार खत्म हुआ है. एंड थर्ड है SolidWorks कंपोजर, जो अगर आपको मेन्यूज क्रिएट करनी हो मशीन मैन्यूल से, मेंटेनेंस मैन्यूल से, अगर वो आपको क्रिएट करना हो वो आप क्रिएट कर सकते हो. देन हमारे पास है SolidWorks PDM, दैट इज 3D एक्सपीरियंस, हमारा क्लाउड बेस्ड PDM PLM सॉल्यूशन है. सेम वी हैव ऑन प्रीमाइज PDM PLM सॉल्यूशन दैट इज SolidWorks PDM. एंड SolidWorks MBD और PMI, अगर आपको 3D में PMI दैट इज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी हो तो उसके लिए MBD का यूज कर सकते हो. एंड एट द लास्ट वी हैव SolidWorks सिमुलेशन जिसमें CFD FEA वो चीज हमारे पास है. Then for Hexagon, we are the channel partner for CAM products. So CAM में हमारे पास है SPTage. So SPTage is a software for CNC VNC machines.
This is a full spectrum software which can deal with 2 axis to 22 axis. So we are dealing with the CAM software in Espritage for die and mold industry, especially for injection molding. We have VZ, and for the furniture industry, we have our well-known software that is Cabinet Design. So in Sopan Machinery Tool, we are the channel partner for Sugami. So Sugami के जितने भी machines है, either it is a CNC lathe, CNC cutter turning, VMC, Milton, so वो सब machines के हम dealers हैं. In Walter, we are the channel partner for cutting tools. Also in Sopan Machinery Tools, other CAM related services like cutting oil और air और clean oil हम provide करते हैं. Also, right now there is a shortage of manpower, so many customers ask that क्या आप हमें services provide करते हो? So for that we have introduced our Sopan AMC portal. So in which अगर आपको CAM related कोई भी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आपको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको पार्ट कट करवाना हो, वो सारी चीज आपको करनी हो, so डायरेक्टली आप हमारे पोर्टल पे जा सकते हो. आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, जस्ट सिलेक्ट दो सर्विसेज, आपको कोटेशन मिल जाएगा, एंड देन यू कैन टेक द सर्विस फ्रॉम अवर एंड. ओके, सो इन अदर सर्विसेज देन CAM, so we are also providing services in CAD also. अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करवाना हो, R&D प्रोजेक्ट्स आपको करवाना हो, 3D स्कैनिंग, 3D प्रिंटिंग अगर आपको करवानी हो, वो भी आप करवा सकते हो हमारे से. ऑल्सो CAE रिलेटेड सर्विसेज, अगर आपको सिमुलेशन की सर्विसेज भी चाहिए या सिमुलेशन की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं. एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट आवर प्रेजेंस, सो हमारी हेड ऑफिस है सूरत में. ऑल्सो वी हैव 3 इंस्टीट्यूट इन सूरत. वडोदरा में हमारी फॉर्म है, अहमदाबाद में 2 इंस्टीट्यूट, 1 इंफोटेक ऑफिस, 1 मशीनरी एंड टूल ऑफिस, in Rajkot we have office, and in Navsari we have office. So this is the overview of Sopan Group. So now we are moving ahead to our main topic, that is our webinar topic, why SolidWorks flow simulation for real world problems. Okay. So CFD analysis की जरूरत क्यों? First of all हम वो देखते हैं. So पहले देखते हैं कि CFD analysis. CFD analysis is nothing but fluid flow simulation. Generally आपको स्ट्रक्चर सिमुलेशन पड़ता है, जिसमें स्ट्रक्चर की हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं, इसे डिफॉर्मेशन आ रहा है, क्या स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, वो हम परफॉर्म करते हैं. सपोज कहीं पे फ्लूइड इंट्रोड्यूस होता है, तो उस केस में हम कैसे उसका सिमुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लो सिमुलेशन. सो जैसे स्ट्रक्चर के लिए FEA टेक्नोलॉजी यूज होती है, सेम वे फ्लो सिमुलेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज CFD. दिस इज नथिंग बट कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स. So what is this? So simulation of real life fluid flow and heat transfer problem. So majorly जहां आपका fluid introduce होता है, जहां पे आपका fluid introduce होता है, उसके लिए हम CFD का यूज करते हैं. So engineering design products जिसमें gases involved होते हैं, liquids involved होते हैं. सपोज वहां पे हीट ट्रांसफर है, जिसमें 2 मेजर हीट ट्रांसफर हमारे होते हैं, दैट इज फ्री कन्वेक्शन एंड पोस्ट कन्वेक्शन. इवन रेडिएशन आपका इंट्रोड्यूस होता है, वो भी आप कर सकते हो. ऑल्सो फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, जैसे कि विंड लोड एनालिसिस आपने सुना होगा. ओके, सो वो सारे एनालिसिस आपको परफॉर्म करने हैं. अगर सबमर्ज बॉडी है, ओके, तो वो सारे एनालिसिस आपको परफॉर्म करने हैं, तो वो सारे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो विद यूज ऑफ CFD एनालिसिस. ओके, सो दीज आर द analysis done in CFD. As I talk about fluid pressure measure करना हो, velocity measure करना हो, thermal analysis हो गया, turbulence and laminar flow आते हैं, वो अगर आपको करना हो, and much more. So currently design decision कैसे लेते हैं? तो जनरली जो डिजाइन के डिसीजन है, वो हम लेते हैं बाय गट्स फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, हेल्थ कैलकुलेशन और प्रोटोटाइपिंग. अगर कोई कंपनी सालों से काम कर रही है, तो गट्स फीलिंग पे काम करती है, या उसको एक्सपीरियंस है वो वही फील्ड में, जैसे कि 20-22 साल का एक्सपीरियंस होगा, 35 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो जनरली उनको पता चल जाता है कि अगर ये डिजाइन में यूज करूंगा तो उनका काम हो जाएगा. लेकिन अभी जो कंपटीशन हो रही है, वो कंपटीशन में अगर आपको कंपटीशन में अगर आपको रहना है, अगर आपको आपकी प्रोडक्ट वहां पे विन करवानी है, सो इन दैट केसेस
अगर मुझे डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन करना है, फॉर दैट रीजन यू कैन यूज सिमुलेशन. ओके. ऑल्सो सम कंपनीज आर यूजिंग हैंड कैलकुलेशन या फिर प्रोटोटाइपिंग करवाते हैं, सैंपल जनरेट करते हैं, उस पर टेस्ट होता है, अगर टेस्ट में फेल होता है अगेन डिजाइन बनती है. तो वो सारी प्रोसीजर चलती है. तो उसके डिसएडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, अगर आप सालों से डिजाइन करते हो, ओके, तो देयर आर चांसेस जो डिजाइन आप यूज कर रहे हो वो ओवर डिजाइन हो, वहां पे ऑप्टिमाइजेशन का चांसेस हो, वहां पे आप मास रिडक्शन कर सकते हो. तो वो आप चेक कर सकते हो विथ यूज ऑफ सिमुलेशन. देन अगर आपको अल्टरनेटिव्स फाइंड करने हो, ओके, कि अगर आपको अदर डिजाइन ट्राई करनी हो तो वो आप ट्राई कर सकते हो. अगर कुछ नया इनोवेशन करना है, जो टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है, अगर वो रिड्यूस करना, वो सारी चीजें आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो. एंड एंडलेस लूप इज नथिंग बट, अगर आपने कोई प्रोटोटाइप करवाया, उसमें डिजाइन फेल हुआ, वापस से डिजाइन चेंज होगा, अगेन प्रोटोटाइप बनेगा, तो वो जो साइकिल है, जब तक आपकी डिजाइन फाइनल नहीं होगी तब तक जो आपकी साइकिल चलेगी, वो साइकिल को अगर आपको रिड्यूस करना है तो उसके लिए आप सिमुलेशन का यूज कर सकते हो. सो ये सारे चैलेंजेस आता है अगर आप ट्रेडिशनल वे से अगर डिजाइनिंग करते हो तो. सो एज आई मेंशन, अगर सिमुलेशन का यूज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो. डिजाइन एक्सप्लोरेशन, अगर मुझे कोई नई डिजाइन करनी है वो आप कर सकते हो. सो अगेन विथ सिमुलेशन टूल यू आर कॉन्फिडेंट विथ योर डिजाइन कि मेरे पास एक प्रूफ है कि दैट इज आई हैव सिमुलेटेड माय डिजाइन. सो आपके पास एक प्रूफ होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. तो क्या क्या चीजें डिक्रीज होगी? सो फर्स्ट थिंग इज जो आपका कॉस्ट है प्रोटोटाइप का, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा. देन टाइम टू मार्केट, जो आपका इनोवेशन का साइकिल है, नया डिजाइन का जो R&D का जो साइकिल टाइम है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा. एंड फेलियर के चांसेस आपका कम हो जाएंगे. एंड रिस्क फ्री डिजाइन आप कर सकते हो. ओके. सो ये है मेजर बेनिफिट ऑफ सिमुलेशन. नाउ हम देखते हैं कि व्हाई सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन ओनली. ओके. सो जनरली अगर आप में से कोई अगर सिमुलेशन यूज करता है या कहीं पे एज अ सर्विसेज प्रोवाइड, अब आप सर्विसेज करवाते हो एज अ सिमुलेशन, तो प्रॉब्लम वहां पे क्या होती है? तो जनरली होता क्या है, जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ CFD इज नथिंग बट CFD इज डन बाय CFD यूजर्स ओनली. CFD जो है, जो उसके एक्सपर्ट है वही करेंगे. तो जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी CFD में वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो उसमें क्या होता है, डिजाइन इंजीनियर जो होगा वो डिजाइन बनाएगा, फिर वो डिजाइन इंजीनियर वो सॉफ्टवेयर में वो डिजाइन टेस्ट करवाने के लिए जो CFD का स्पेशलिस्ट होगा उसको डिजाइन साइड करेगा. सो जो सॉफ्टवेयर है वो एज अ बैरियर वर्क करता है डिजाइन इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो हर टाइम अगर उसको नई डिजाइन करनी हो या फिर डिजाइन को उसको चेक करवाना हो या उसको टेस्ट करवाना हो, वर्चुअली टेस्ट करवाना हो, तो इन दैट केस उसको डिपेंडेंसी रहनी पड़ेगी CFD स्पेशलिस्ट पे. सो सॉलिडवर्क्स जो होगा वो बैरियर ब्रेक करता है. ओके. सो डायरेक्टली इन सॉलिडवर्क्स UI इटसेल्फ आप फ्लो सिमुलेशन वर्क कर सकते हो. तो सॉलिडवर्क्स फ्लो सिमुलेशन नथिंग बट जो ये स्टेटमेंट है दैट इज CFD एनालिसिस इज ओनली फॉर स्पेशलिस्ट पर्सन. सो by the introduce of SolidWorks flow simulation you can say not anymore, because SolidWorks flow simulation में आप itself only SolidWorks के अंदर ही आप फ्लो सिमुलेशन कर सकते हो विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ CFD. ओके. ऑल्सो अगर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करना हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो. अगर पावरफुल पोस्ट प्रोसेसर आपको मिलेगा, ऑल्सो इजी टू यूज है. हम अभी एक वर्कफ्लो देखेंगे कैसे आप पूरी स्टडी परफॉर्म कर सकते हो विथ ऑप्टिमाइजेशन. डिजाइन का मुझे ऑप्टिमाइज करना है वो हम प्रोसेस देखेंगे. सो हाउ इजीली यू कैन डू दिस वी विल सी. एंड जो मॉडल सेटअप है वो सारी चीजें हम देखेंगे. तो सिंपली इजी 5 स्टेप्स में आप यहाँ पे आपकी CFD स्टडी डिफाइन कर सकते हो और उसको रन करवा सकते हो. ओके. सो पहले हम ये वर्कफ्लो देख लेते हैं हाउ इट विल वर्क. ओके. सो फॉर दैट आई एम टेकिंग ए एग्जांपल ऑफ हीट एक्सचेंजर. सो डिजाइन सिनेरियो भी मेरा है क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक डक्ट डिजाइन है जिसमें से फ्रॉम द लेफ्ट साइड मेरी एयर इनलेट होगी. So we have 3 different chamber. Okay. So in 3 different chamber my air will be distributed. Okay. And ये जो chamber है वहां पे मेरा porous medium है. Porous medium is nothing but आप कंसिडर कर सकते हो फिल्टर को.
कि मैंने वहां पे फिल्टर्स लगे जिससे मेरी एयर फिल्टर्स होगी. ओके, सो एट द एंड ऑफ पोरस मीडियम आई हैव 3 रेगुलेटर्स. सो रेगुलेटर्स क्या करेंगे, वो जो रेगुलेटर्स है ना उससे वो फ्लो मैनेज होगा. ओके, सो और एट द एंड वी हैव अवर एयर आउटलेट. सो मेरा जो कंसर्न है सीएफडी का कि मुझे ये जो एयर रेगुलेटर फ्लैप्स है वो कितने ओपन रखने चाहिए जिससे तीनों चैम्बर में से मेरी यूनिफॉर्मली एयर बाहर आए. तो ये मेरा करंट डिजाइन सिनेरियो है. ओके, so this is my problem statement. So now we will see how we can deal with this problem using SolidWorks flow simulation. Okay, so first हम करेंगे physical setup, that is our simple CFD analysis setup, and then हम करेंगे design optimization. आप यहाँ पे देख पाओगे how easily you can do a physical setup and design optimization. Okay, so let's start with our physical setup. Okay, तो just मैं मेरा वीडियो प्ले करता हूँ. ओके, सो ये है मेरा SolidWorks UI. इसी के अंदर आपका SolidWorks फ्लो सिमुलेशन एज अ एड इन ऐड हो जाएगा. सो ये है SolidWorks फ्लो सिमुलेशन का सिमुलेशन विजार्ड. ओके, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट का नेम ऐड कर सकते हो, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का वर्क करो वो डिफाइन कर सकते हो. देन सेकंड पेज पे आएगा जो यूनिट सिस्टम आपको यूज करना है. सो ऑलरेडी प्री डिफाइंड यूनिट सिस्टम है. अगर आपको आपका कस्टमाइज यूनिट भी डिफाइन करना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो. थर्ड आता है कौन से टाइप का फ्लो सिमुलेशन आपको परफॉर्म करना है. इंटरनल, एक्सटर्नल है, हीट ट्रांसफर है, टाइम डिपेंडेंट ट्रांजिट एनालिसिस है. तो जो भी चाहिए वो आप स्टडी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. देन फ्लूइड सिलेक्ट करना होता है. ऑलरेडी इनबिल्ट फ्लूइड की लाइब्रेरी अवेलेबल है. अगर आपको कस्टम फ्लूइड भी ऐड करना तो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो. देन आपका आएगा वॉल पैरामीटर्स एंड एट द एंड द एनवायरमेंटल पैरामीटर्स. तो ये सब डिफाइन करने के बाद आपका फ्लूइड डोमेन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा. ओके, नाउ एक बार आपका फ्लूइड डोमेन जनरेट हो गया, नाउ वी हैव टाइम टू डिफाइन अवर बाउंड्री कंडीशन. ओके, तो सबसे पहले मैं मेरी इनलेट बाउंड्री कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ. सो इनलेट पे अगर आपको मास फ्लो रेट देना है, वॉल्यूम फ्लो रेट देना है, वेलोसिटी डिफाइन करनी है, प्रेशर डिफाइन करनी है, जो चीज आपको चाहिए आपके इनलेट बाउंड्री कंडीशन है वो आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हो. ओके, देन आफ्टर डिफाइनिंग द इनलेट बाउंड्री कंडीशन मैं डिफाइन करूंगा मेरी आउटलेट बाउंड्री कंडीशन. ओके, सो जनरली जो आउटलेट में हम यूज करते हैं दैट इज प्रेशर ओपनिंग हमारी आती है या हमारे पास एंड में मास फ्लो होता है. सो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे कि मैंने बताया मेरे पास ये 3 चैम्बर है, वहां पे पोरस मीडियम मैंने इंट्रोड्यूस करा है. सो पोरस मीडियम डिफाइन करने के लिए मैं डायरेक्टली वहां पे जो मैंने 3 डोमेन मैंने क्रिएट करे वो डोमेन में सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से मैं पोरस मीडियम डिफाइन करूंगा. सो पोरस मीडियम जैसे अगर मेरे पास फिल्टर है तो फिल्टर से मेरे पास स्मॉल स्मॉल होल्स होंगे. तो होल की साइज क्या होगी. ओके, सो बाय डिफॉल्ट सारे मटेरियल डिफाइन है. अगर आपको खुद से डिफाइन करना वो भी डिफाइन कर सकते हो. राइट, अभी मेरी पोरोसिटी 0.8 की है और क्या आप मेजर करो, जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप एंड मास फ्लो ड्रॉप मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रहा है. तो जो भी चीज वहां पे डिक्रीज होगी वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. सो आफ्टर सिलेक्टिंग योर पोरस मीडियम, ओके, नाउ योर स्टडी इज रेडी टू कैलकुलेट योर रिजल्ट्स. ओके, सो बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल कंक्लूजन मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ मेरी मैश. इवन आप देख सकते हो ऑटोमेटिक एंड मैनुअल मैशिंग अवेलेबल है विच इज क्वाइट रोबस्ट. आप बहुत इजी वे से आप मैशिंग डिफाइन कर सकते हो. एंड फॉर रिजल्ट्स जो पोस्ट प्रोसेसर है हमारा, मुझे जो रिजल्ट्स चाहिए जैसे ग्राफ फॉर्म में हमें चार्ट चाहिए होते हैं या फिर ऐसा चार्ट फॉर्म में मुझे चाहिए. सो जो भी आपको रिजल्ट्स चाहिए वो आप रिजल्ट्स यहाँ से डिफाइन कर सकते हो. ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो भी आउटपुट पैरामीटर जैसे कि प्रेशर हो गए, वेलोसिटी हो गया, ओके, देन टेम्परेचर है, वो सब डिफाइन कर सकते हो. अगर आपको यूजर डिफाइन गोल डिफाइन करना हो, जैसे कि इनलेट प्रेशर मेरे पास है, आउटलेट प्रेशर मैंने डिफाइन करा है, तो दोनों के सेपरेशन से मुझे मिलेगा मेरा प्रेशर डिफरेंस. सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्रेशन भी डाल सकता हूँ, दैट इज इनलेट प्रेशर माइनस आउटलेट प्रेशर विच इज इक्वल टू माई प्रेशर ड्रॉप. तो आपको एक और एडिशनल पैरामीटर आपको मिलेगा विच इज प्रेशर ड्रॉप. सो अकॉर्डिंग टू योर टाइम जैसे जैसे फ्लो होगा कितना प्रेशर ड्रॉप होगा वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो. ओके,
सो मैंने मेरे गोल्स डिफाइन कर लिए. ओके, अभी जस्ट मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा जो मेरा पोरस मीडियम है. सो पोरस मीडियम के अक्रॉस मेरा कितना मास फ्लो रेट है, अभी मुझे वो चाहिए. सो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो. तो सिंपल मैं भी यहाँ पे सरफेस सिलेक्ट करूंगा. सो सरफेस के ऊपर मैं यहाँ पे बॉडी लेफ्ट है जहां से मेरा इनलेट है, वहां पे मैं मेरा मास फ्लो रेट डिफाइन करूंगा. एंड दी आउटलेट, आउटलेट पे भी मैं मेरा मास फ्लो रेट यहाँ से डिफाइन करूंगा. और मुझे जितना भी फ्लूइड वहां से पास होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. तो जो मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास फ्लो रेट चाहिए वो आप यहाँ से इजीली डिफाइन कर सकते हो. ओके, सो आफ्टर डिफाइनिंग दी स्टडी, तो नाउ आप डायरेक्टली स्टडी को रन कर सकते हो. सो नॉर्मल सॉल्वर सेटिंग्स का यूज करके आप यहाँ से आपकी स्टडी डिफाइन कर सकते हो. सो इजीली आप देख सकते हो एज द इंटरैक्टिव आपको विंडो मिलेगी जहां पे जैसे जैसे आपका सिमुलेशन रन होगा आप अपने गोल्स जो कन्वर्ज हो रहे हैं वो कन्वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा. एट द सेम टाइम आपको रियल टाइम सॉल्यूशन का जो चार्ट्स है, कंटूर्स है, वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा. सो पोस्ट प्रोसेसर की बात करूं तो जितने भी जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स है, लाइक मुझे सरफेस पे मुझे आईसो सरफेस चाहिए, जो कंट्रोल्स मुझे चाहिए, या फिर मुझे वेक्टर लाइन चाहिए, स्ट्रीम लाइन चाहिए. ओके, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. तो सबसे पहले मैंने टॉप प्लेन पे मैं यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ. ओके, देन मुझे यहीं पे अगर मुझे सरफेस पे टेम्परेचर चाहिए, वो सारी चीजें भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो. ओके, सो ये मेरा हुआ कट प्लॉट. अभी मैं डिफाइन करूंगा मेरा सरफेस प्लॉट. ओके, तो सरफेस प्लॉट डिफाइन करने के लिए यहाँ से डायरेक्टली आप सरफेस प्लॉट डिफाइन कर सकते हो. तो यूज ऑल फेसेस, ऑटोमेटिकली आउटर फेसेस वो ले लेगा. ओके, सो आपको फेसेस के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, जैसे कि मेरे पास पर्टिकुलर एक पाइप है, वहां पे कितना प्रेशर जनरेट हुआ है वो आप यहाँ से इजीली लेजेंड के थ्रू आप निकाल सकते हो. ओके, सो ये हुआ हमारा आइसो सरफेस. देन आता हमारा फ्लो ट्रेजेक्टरी. आपने फ्लो लाइंस देखी होगी जनरली. सो वो आती है स्ट्रीम लाइन. अगर आपको स्ट्रीम लाइन जनरेट करना है, सो मुझे डिफाइन करना है इनलेट कहाँ से मेरा स्ट्रीम लाइन स्टार्ट होगी. तो डायरेक्टली आप इनलेट से डिफाइन करके आप स्ट्रीम लाइन जनरेट कर सकते हो. ओके, तो मैं यहाँ पे मेरा इनलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ. ओके, एंड टाइप ले रहा हूँ कि मुझे एज अ पाइप फॉर्म, दैट इज अ लाइन फॉर्म, सिंपल. तो इस तरीके से आपको आपकी स्ट्रीम लाइन मिलेगी. मुझे ज्यादा लाइंस दिखाने तो मैं उसको यहाँ से डेंस कर सकता हूँ. सो आपको इजीली आप यहाँ से ये विजुअलाइज कर सकते हो कि हाउ योर फ्लो विल बी पास थ्रू ईच पोरस मीडियम. ओके, सो ये है पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक, हाउ यू कैन डिफाइन योर रिजल्ट्स. अगर आपको रिपोर्ट्स फाइल करने हो या फिर क्लाइंट को प्रेजेंट करना हो या फिर खुद आपको एनालाइज करना हो, तो वो आप इजी तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो. ओके, सो ये हुआ हमारा बेसिक फ्लो सिमुलेशन सेटअप. आप देख सकते हो इजीली विद इन 2 to 3 मिनट्स आप पूरी स्टडी डिफाइन कर सकते हो और सारी जो आपकी कैलकुलेशन है, ओके, वो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आप डिफाइन कर सकते हो और इजीली उसको विजुअलाइज भी कर सकते हो. ओके, सो ये है हमारा फ्लो सिमुलेशन का ओवरव्यू जो हमने सिंपल मैंने डिजाइन करा है. ओके, सो अगर आपको इंटरैक्टिव प्लॉट्स भी चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो ये कन्वर्जेंस प्लॉट है. ओके, सो आपको एट द एंड ऑफ द टाइम जो भी मेरा वैल्यूज है फाइनल वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ओके, नाउ ये मेरा रेडी हो गया था फ्लो सिमुलेशन. अभी आएगा फ्लो सिमुलेशन का मुझे ऑप्टिमाइजेशन करना है. जैसे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि मेरा फ्लो तो हो गया, लेकिन कितना वाल्व मुझे ओपन करना है जिससे इक्वली मेरा मास फ्लो बाहर आए. सो वो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो वो कैसे करेंगे वो भी मैं डिफाइन करता हूँ अभी. सो ये हुआ मेरा फिजिकल सेटअप. अभी मैं करूंगा डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन कि बाल की कौन सी पोजीशन रखोगे जिससे आपको इक्वली मास फ्लो रेट आपको मिलेगा तीनों एंड से. सो वो करने के लिए फॉर नाउ अभी मैंने इनलेट कंडीशन पर रखा है. एक वाल मेरा ओपन है 30 डिग्री एंगल पे, सेकंड ओपन है 40 डिग्री एंगल पे, थर्ड ओपन है 50 डिग्री एंगल पे. अभी मैं सॉफ्टवेयर में गोल्स डिफाइन करूंगा कि 0 to 60 वाल ओपन कर सकते हो आप, ये मेरी लिमिट्स है. तो
कौन सा एंगल मुझे डिफाइन करना चाहिए जिससे मेरा इक्वली मास फ्लो रेट तीनों में से बाहर आए। तो वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट, ये जो मेरा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मैंने एंगल्स डिफाइन कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ से डिफाइन करूंगा ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्टिमाइजेशन डिफाइन करने के लिए मैं रन करूंगा पैरामेट्रिक स्टडी, जिसे बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस और पैरामेट्रिक स्टडी। ओके, सो जो चीजें मुझे पैरामेट्रिक स्टडी में चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पे 3 एंगल्स ले लिए हैं। ओके, अभी मैं एंगल की रेंज डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो व्हाट इज माय मिनिमम रेट, व्हाट इज माय मैक्सिमम रेट। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 60। तो सॉफ्टवेयर करेगा क्या, 0 से लेकर 60 के बीच में इटरेशंस डिफाइन करेगा कि कौन से इटरेशन पे मुझे इक्वली मास फ्लो रेट मुझे मिलेगा। ओके, फिर मुझे डिफाइन करना है गोल। मेरा गोल क्या है, मुझे इक्वली मास फ्लो रेट चाहिए। ओके, और कितने इटरेशन चाहिए वो आप इटरेशन डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने डिफाइन करा कि 15 इटरेशन ट्राई करने। तो सॉफ्टवेयर अलग अलग एंगल्स डिफाइन करेगा, कौन से इटरेशन में मास फ्लो रेट आपको मिलेगा वो यहाँ से निकल आएगा। ओके, तो डायरेक्टली अगर आप स्टडी रन करोगे तो 1 बाय 1 आपके 15 इटरेशन रन होंगे और सबके लिए जो भी मास फ्लो रेट की वैल्यू है वो आपकी यहाँ से कैलकुलेट होगी। तो जैसे आपके सारे इटरेशंस रन हो जाएंगे, ओके, तो आप यहाँ पे प्लॉट देख सकते हो। ओके, फॉर ईच गोल। तो अभी मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि जो भी मेरे मास फ्लो रेट है एट द एंड ऑफ द एनालिसिस, मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे हर एक पे 20 20 20, क्योंकि ये पे मेरा 60 था, तो मैं इक्वली डिवीजन करूंगा तो 20 20 20 मेरा आउट होगा। सो ये मुझे एज आउटपुट चाहिए। तो सॉफ्टवेयर मुझे अभी बताएगा कि कौन से इटरेशन, कौन से एंगल पे अगर ये मेरा मैं बाल ओपन करूंगा तो मुझे इक्वली मास फ्लो रेट मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे पोजीशन है वाल की। ओके, यहाँ पे ज्यादा ओपन है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट वर्टिकल जैसा आपको वहां पे मिल रहा है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पैरामेट्रिक स्टडी, ओके, आप यहाँ से हिस्ट्री निकाल सकते हो, आपको यहाँ पे मिलेगा अलग अलग प्लॉट्स। ओके, सो यहाँ से हमें उसकी फाइनल वैल्यू में मिलेगी। सॉरी, सो मैं अभी यहाँ पे मेरी वैल्यूज डिफाइन करूंगा कि कौन से वैल्यू एंगल पे मुझे ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। सो यहाँ से डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। तो अभी आपको सॉफ्टवेयर बनाएगा कि ये है आपकी रिजल्ट, दैट इज वन वाल नियरली 7 डिग्री एंड थर्ड विल बी ओपन एट 35। ये पोजीशन रखोगे तो आपको इक्वली मास फ्लो रेट एट द एंड ऑफ आउटलेट आपको मिलेगा। ओके, तो पहले हमने देखा कैसे हम स्टडी डिफाइन कर सकते हैं, अभी हमने देखा कैसे आप अपनी डिजाइन ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो विथ यूज ऑफ दिस फ्लो सिमुलेशन, अगर आपको ये डिजाइन इटरेशन ट्राई करना हो, अभी सोचो अगर यही चीज अगर आपको प्रैक्टिकली करनी हो, ओके, तो कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आपको ये चीज मेजर करनी हो प्रैक्टिकली। सो ये जो टाइम आपका वेस्ट होगा, ओके, ये सब चीजें डिफाइन करने में, वो डायरेक्टली आप यूटिलाइज कर सकते हो विथ यूज ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सो ये हमने देखा जनरल ओवरव्यू, हाउ वी हैव सेट अप आवर फिजिकल प्रॉब्लम, देन वी हैव डन आवर डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो हाउ इजीली वी कैन डू एंड हाउ यू कैन रिड्यूस योर फिजिकल प्रोटोटाइपिंग। कि जो लैब टेस्ट बोलते हैं या जो फिजिकल टेस्ट बोलते हैं वो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, वो ये हमने यहाँ पे देखा। नाउ हम चेक करते हैं, ये तो हमने एक एग्जांपल देखा इंटरनल फ्लो का। सो कौन कौन से एनालिसिस अदर देन दिस वी कैन परफॉर्म इन आवर फ्लो सिमुलेशन डोमेन, वो भी हम देखेंगे। पोर्टफोलियो, ओके, कौन कौन सी चीजें आप सॉलिडवर्क्स पोर्टफोलियो में कवर कर सकते हो, वो अभी हम देखेंगे। सो बेसिकली सॉलिडवर्क्स के अंदर जो हमारा फ्लूइड फ्लो एनालिसिस है, तो फ्लूइड में हम जनरल फ्लो एनालिसिस एज वेल एज हमारा हीट ट्रांसफर एनालिसिस वो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास है दैट इज इंटीग्रेशन विद सॉलिडवर्क्स कैड। कैड के साथ का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देन है ऑटोमेटिक डिजाइन इटरेशन, जो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, जो अभी हमने देखा। ओके, जिसमें कौन सी ऑप्टिमम डिजाइन होगी
जिसमें आपने गोल डिफाइन करोगे तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। देन आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो, जैसे जो हमारा एग्जांपल था वो इंटरनल फ्लो का था। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल फ्लो करना चाहते हो, जैसे कि फ्लो ओवर अ ब्रिज, फ्लो ओवर अ एरोफॉइल, फ्लो ओवर अ एरोप्लेन, सो वो आपका कवर होता है एक्सटर्नल फ्लो में, तो वो आप स्टडी कर सकते हो। देन आता है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल मींस जैसे कि एयर है, गैसेस है, जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो। ओके, सो वो फ्लूइड आपको कंसिडर करना हो, या फिर जो इनकम्प्रेसिबल लाइक वाटर, ओके, अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल, अगर आपको उस पे एनालिसिस करने हैं तो वो आप कंप्लीट एनालिसिस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। देन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स भी आप एनालिसिस कर सकते हो। न्यूटोनियन में आता है हमारा वाटर से जनरल फ्लूइड जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं, ऑयल, वो सब हमारे वो कैटेगरी में आता है। नॉन न्यूटोनियन में आता है आपका थिक्स फ्लूइड लाइक हनी हो गया, फिर जैसे मर्ड हो गया, ओके, ब्लड हो गया, सो वो सारी चीजें आपकी उसमें कवर होती है। केचअप जिसे हम कंसिडर कर सकते हो, वो सारी चीजें आपकी आती है। तो अगर वो सारे फ्लूइड का एनालिसिस करना हो तो वो भी आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। देन आता है हमारा लेमिनार, टर्बुलेंट एंड ट्रांजिएंट फ्लो। तो इन फ्लूइड देयर इज अ नंबर कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करता है आपका फ्लूइड लेमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा, ट्रांजिएंट होगा, जिसमें आपकी फ्लूइड की विस्कोसिटी एंड स्पीड डिपेंड करती है। तो तीनों एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। देन अगर हीट ट्रांसफर की बात करूं तो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन दोनों कर सकते हो। इसमें भी फोर्स्ड कन्वेक्शन एंड फ्री कन्वेक्शन दोनों आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। देन अडा रोटेटिंग रीजन, जितनी भी कंपनीज रोटेटिंग रीजन्स में डील करती है, जैसे कि टर्बो मशीनरी हो गए, ओके, जिसमें आपका ब्लोअर, टर्बाइन, ओके, अगर आपको उसका सिमुलेशन करना हो तो वो आप परफॉर्म कर सकते हो विद दिस एनालिसिस। एंड देन आपका आता है फ्री सरफेस एनालिसिस। अगर मुझे कोई टैंक फिल करना हो, या जो मेरी टैंक है कितने टाइम में वो खाली हो जाएगी, ओके, एम्प्टीइंग द टैंक, द प्रोसेस वी नो कॉल्ड एज, वो अगर आपको परफॉर्म करना तो वो परफॉर्म कर सकते हो। एंड देन आता है कपल्ड विद सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन, जिसमें फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, दैट इज FSI, अगर आपको वो परफॉर्म करना तो वो भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर एक एग्जांपल दो, जैसे रोड पे अगर आपके पास एक साइन बोर्ड है, ओके, वहां पे अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो फ्लूइड फ्लो से साइन बोर्ड क्या वो लोड ले पाएगा नहीं, वो विंड लोड पे सस्टेन करेगा या नहीं, अगर आपको वो चेक करना तो वो कर सकते हो। इन दैट केस जो आपका फ्लूइड का रिजल्ट होगा वो एज अ इनपुट वर्क करेगा आपके सिमुलेशन के लिए, तो वो एनालिसिस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सो अभी हम देखते हैं जो सारे एनालिसिस हमने देखे, तो उसके जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, कौन कौन से एग्जांपल वी हैव परफॉर्म इन आवर सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे कि मेरे पास है मड फ्लो अराउंड अ ड्रिल बिट, ओके, देन मेरे पास प्रोपेन वाल है, ओके, अगर जो कंपनी वाल इंडस्ट्री से डील करता है तो वो भी कर सकते हैं। देन टर्बो मशीनरी लाइक पंप्स, टर्बाइंस, ओके, उसमें डील कर सकते हो, ओके। देन मेरे पास गेटवे वाल है कि कितना मैं ओपनिंग करूंगा तो कितना फ्लो जाएगा। जनरली वाल इंडस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दैट इज सीवी कैलकुलेशन, तो वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। एंड मैनीफोल्ड एनालिसिस, ओके, चौक फ्लो हो रहा है नहीं, ओके, सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन आता है फ्लो ओवर द स्ट्रक्चर एंड फ्लो इनसाइड द स्ट्रक्चर, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, ओके, जैसे विंड लोड चेक करना हुआ, हीट ट्रांसफर एनालिसिस करना हुआ, साइक्लोन सेपरेटर, तो ये सारे इंटरनल फ्लोज हो गए, ओके। जैसे कि मेरे पास HVAC एनालिसिस जैसे बोलते हैं, जनरली मॉल्स में आप देखते हो डक्ट लगी होती है सारी, सो कितना ह्यूमन कंफर्ट होगा, क्या मेरी एयर प्रॉपर फ्लो होगी या नहीं, कहाँ पे मेरी डक्ट की ओपनिंग होनी चाहिए, तो वो सारे एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हो विद यूज ऑफ HVAC एनालिसिस, ओके। सो अगर कहीं पे जैसे कि मेरे पास फ्लो ड्रिल बिट के ऊपर फ्लो हो रहा है, सो उसके अराउंड क्या प्रेशर जनरेट होगा, दैट इज PDC एनालिसिस मैं बोल सकता हूँ, तो वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। देन आता है हमारा रेडिएशन वाला सेगमेंट, दैट इज हीट ट्रांसफर सेगमेंट, ओके, तो सोलर रेडिएशन हो गया, स्पेस में है तो रेडिएशन वहां पे प्रीडोमिनेंट होता है अदर देन कन्वेक्शन एंड कन्वेक्शन, ओके।
फिर आपके पास आता है मेडिकल डिवाइस में अगर आपको करना जिसमें कंप्रेसिबल फ्लूइड भी आता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी आता है। ओके, सो जैसे कि मैं ब्रीडिंग करता हूँ, ओके, जैसे हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है, तो कैसे एयर इन होगी, कैसे एयर आउट होगी, ओके, सो वो आप चेक कर सकते हो। इवन रॉकेट सेल्फ बस, ओके, सो हाउ हाई प्रेशर एयर विल बी फ्लो, वो अगर आपको चेक करना तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन आता है हमारा टर्बो मशीनरी में एक सेगमेंट है दैट इज मिक्सिंग। अगर मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स, ओके, या फिर मिक्सिंग ऑफ सिंगल फ्लूइड, तो सपोज मुझे इक्वली मिक्सिंग करना है, तो मैं मेरी ब्लेड को या मैं मेरी जो भी एजिटेटर है, अगर वो मैं अगर फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रन करूंगा, तब जाके मेरा मिक्सिंग होगा। अगर आपको वो चेक करना है, वो आप एनालिसिस कर सकते हो। एट द सेम टाइम वो ब्लेड को चलाने के लिए मुझे कितना टॉर्क चाहिए, वो टॉर्क भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। सो ऑन दैट बेसिस कितने एचपी की मोटर लगेगी आपकी, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो टैंक एजिटेशन वो कर सकते हो मिक्सिंग के लिए। फ्लूइड मिक्सिंग जिसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी आप यूज कर सकते हो, न्यूटोनियन फ्लूइड भी आप यूज कर सकते हो। एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ओके, सो कितना मेरा प्रेशर ड्रॉप होगा, मतलब कितना मेरा हेड जनरेट हुआ, वो आप डिफाइन कर सकते हो। ऑल्सो वो पंप रन करने के लिए मुझे कितना पावर लगेगा, तो वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। फिर मैंने लिखा था आपको एक फ्री सरफेस एनालिसिस, ओके, जिसमें मैंने बोला था टैंक एम्प्टी या टैंक फिलिंग जिसे बोलते हैं। ओके, जैसे कि मेरा कप फिलिंग है, जो मल्टीपल टैंक है, ओके, सर कौन सी टैंक मेरी फर्स्ट फिल होगी, कितने टाइम के बाद मेरी सारे टैंक फिल्स हो जाएंगी। ओके, जैसे वाटर फाउंडेशन एनालिसिस हो गया। टैंक्स क्लस्टरिंग, अगर आपकी ट्रक जा रही है, सो अगर मेरी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी, जैसे कि एक्सीलरेट करूंगा, कहीं पे ब्रेकिंग में अप्लाई करूंगा, तो क्या इफेक्ट आएगी मेरी फ्लूइड्स में। ओके, सो वो सारे एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हो विद यूज ऑफ फ्री सरफेस एनालिसिस। ओके, तो ये सारे एनालिसिस होते हैं आपके फ्री सरफेस एनालिसिस में। देन आता है हमारा एक अलग से मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल कूलिंग के लिए। ओके, सो स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो जैसे कि मेरे पास हीट सिंक है, तो मैं उसको कूल करने के लिए मैं उसमें एयर ब्लो करूंगा। जैसे कि अब लैपटॉप हमारे आते हैं जिसमें फैंस होते हैं, या कई बार लिक्विड कूलिंग लैपटॉप भी हमारे आते हैं। ओके, तो जिससे आपका लैपटॉप जल्दी से कूल होगा, जो आपका मदरबोर्ड है वो जल्दी से हीट नहीं होगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर आपको कूलिंग की एनालिसिस आपको परफॉर्म करनी हो, ओके, या आपको थर्मल रेजिस्टेंस आपको निकालना हो, तो वो आप डिफाइन स्टडी कर सकते हो विथ यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कूलिंग मॉड्यूल। सो ये सारे इंडस्ट्री में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एंड हाउ सॉलिडवर्क्स फ्लो सिमुलेशन कैन डन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, वो हमने अभी देखा। सो जो की टेकअवेज है, दैट इज फर्स्ट वन इज अनेबल फास्ट एंड एक्यूरेट फ्लो सिमुलेशन। ओके, मैंने दिखाया आपको हाउ इजीली यू कैन डिफाइन योर स्टडी, हाउ इजीली यू कैन डिफाइन योर ऑप्टिमाइजेशन स्टडी विद इन द सेम कैड एनवायरनमेंट। ओके, जनरली होता क्या है कि आप कैड डिजाइन बनाओगे, किसी और सॉफ्टवेयर में आप सीएफडी एनालिसिस करोगे, वहां से कुछ चेंज है, वापस से कैड में चेंज करोगे, वापस से सीएफडी डिजाइन करोगे, तो वो भी एक लूपहोल जनरेट होता है। तो वो लूपहोल आप निकाल सकते हो विथ यूज ऑफ सॉलिडवर्क्स फ्लो सिमुलेशन, बिकॉज सॉलिडवर्क्स 3D कैड एंड फ्लो सिमुलेशन एक ही सॉफ्टवेयर में आपका इंटीग्रेट हो जाता है। सेकंड है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ जिसे मैं बोल सकता हूँ, दैट इज रिड्यूस प्रोटोटाइपिंग कॉस्ट। ओके, जो मैं टेस्टिंग की साइकिल्स है, ओके, कंप्लीटली नहीं, सपोज आप 10 इटरेशन कर रहे हो, 10 इटरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें से विथ यूज ऑफ दिस टूल आप उसको रिड्यूस करके 3 और 2 नंबर पे ला सकते हो। so, जो आपका जो 7 इटरेशन जो आपके कम हुए, ऑन दैट बेसिस यू कैन डिफाइन योर आरओआई। अगर मैं ये सॉफ्टवेयर में इतना इन्वेस्ट करता हूँ, तो अगर साल में मैं इतना प्रोटोटाइपिंग कॉस्ट मैं रिड्यूस करता हूँ, तो आप कितने टाइम के बाद आप आपका सॉफ्टवेयर का कॉस्ट निकाल सकते हो, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो दैट इज आरओआई टूल आल्सो अवेलेबल फॉर योर प्रोडक्ट। देन इम्प्रूव डिजाइन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। ओके, अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई डिजाइन है, मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो वो आप यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। एंड बेटर इंजीनियरिंग डिसीजन, जैसे हमने देखा था एग्जांपल में कि कौन से डिग्री पे, कौन से एग्जैक्ट डिग्री पे मुझे इक्वली मास प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। ओके, सो बेटर इंजीनियरिंग डिसीजन ले सकते हो
एंड अगर आपके पास ये टूल है, अगर कोई बोलेगा कि हाँ इतने पे ही कहाँ कैसे आपने डिफाइन करा, तो आपके पास एक सपोर्टिव टूल होगा, सपोर्टिव रिपोर्ट होगा आपके पास कि मैंने यहाँ पे ये टूल से टेस्ट करा है कि ये डिग्री अगर मैं रखूंगा तो मुझे इतना मुझे आउटपुट मिलेगा। तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आपको क्रिएट करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, एंड हेल्प बिजनेस स्टे इन कंपटीशन विद ऑप्टिमाइजर एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। जैसे अभी नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, ओके, तो उनके सारे का कंपटीशन में रहना है आपको। सो कंपटीशन में अगर जाओगे तो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन इज द की पैरामीटर। लो प्राइस में सेम परफॉर्मेंस अगर आप प्रोवाइड करते हो, सो अगेन आप कंपटीशन में बने रहोगे। तो ये सारी चीजों के लिए जो टूल की नीड है वो आप यहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हो। सो दिस इज फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कुछ क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस तो Q&A पोर्टल इज अवेलेबल। कुछ अगर आपको जानना हो आप अनम्यूट कर सकते हो। एनीवन, अगर चैट बॉक्स में अगर आपको कुछ ऐड करना तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। So thank you guys, thank you so much for your time. Hope you will get some information from my session. So thank you all, have a great day.